Students, today we are starting from activity 2.10, chapter number 2 in chemistry. Here, activity 2.10 is take 10 milliliter water in a beaker, add a few drops of concentrated sulfuric acid. H2SO4 means sulfuric acid, concentrated, to it and swirl the beaker slowly. Touch the base of the beaker and we have a couple of questions here. Now we are trying to observe and answer the question. Now, activity 2.10 observation. After adding concentrated sulfuric acid into water which is in the beaker, and we touch the bottom of the beaker, it feels hot. It means the beaker is the temperature of the beaker is rises. This reaction is exothermic reaction because from this reaction the heat is evolved. Also we add a concentrated acid in or a base in water, the concentration of the solution decreases. आप लोगों ने शायद एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम बाजार से कोई शरबत की बोतल लाते हैं, शरबत आजम रूह अफ़ज़ा जैसी बोतल लाते तो हम सीधे सीधा उसको पी नहीं सकते क्योंकि वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है, बहुत शुगर होती है उसमें। तो अगर हम पीते हैं तो गले में जलन होती है, लेकिन उसको हम क्या करते हैं, पानी के अंदर 2 या 3 चम्मच डालने के बाद उसको हिला के पीते हैं तो क्या है, वो अच्छा टेस्ट आता है और पीने में भी प्लीजेंट लगता है, अच्छा लगता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डाइल्यूट होने से कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाता है। यहाँ पे भी ऐसा ही है कि व्हेन concentrated acid or base in a water the concentration of the solution decreases। मतलब कि एसिड और बेस का कॉन्सेंट्रेशन है वो लोअर हो जाता है और उसको यूज करने के लिए एबल हो जाता है। तो इसको बोला जाता है डाइल्यूशन। The dilution of concentrated acid or base. In acid, H plus aqueous and in base OH minus aqueous ion are present. So we have already discussed that in acid H plus ion is present and in a base OH minus ion present, and H plus ion is responsible for acidity and OH minus ion is responsible for basic properties of the solutions. Mixing an acid or base with water, mixing of acid and base with water results in a decrease in the concentration of ion H3O plus or OH minus ion. Why H3O plus? We have already discussed that H plus, when this is acid, and when it added to water, H plus ion of acid immediately join with H2O and form H3O plus. Means H3O plus is present in the solution, is responsible for acidity of the solution. The mixing of acid and base with water result in decrease in the concentration of ions H3O plus or OH minus, H3O plus for acid and OH minus for base per unit volume. This process is called dilution. So unit volume पर यूनिट वॉल्यूम अगर H3O प्लस या OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन हम डिक्रीज करते हैं तो ऐसी प्रोसेस को बोला जाता है डाइल्यूशन। हम उसको डाइल्यूट करते हैं एंड द एसिड और बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड। तो ऐसे एसिड और बेस को डाइल्यूटेड एसिड और बेस बोला जाता है। नाउ
डाइल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। तो अभी हमने देखा कि डाइल्यूशन कैसे होता है, तो कि वाटर ऐड कर दो डाइल्यूट होता है, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है सल्फ्यूरिक एसिड, बट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड के साथ भी यही होना चाहिए। किस तरह से डाइल्यूशन होता है देखते हैं। The process of dissolving an acid or a base is a highly exothermic reaction। exothermic reaction मतलब जब ये दोनों मिक्स करते हैं तो बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है। इट इज कॉल्ड हाईली exothermic reaction। Care must be taken while dilution process of concentrated sulfuric or nitric acid with water। The acid must always be added slowly, drop by drop, to water with constant stirring। याद रखना है कि एसिड को डाइल्यूट करने के लिए पानी में एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करना है। एसिड के अंदर वाटर नहीं, पर वाटर के अंदर एसिड। तो ऑलवेज बी एडेड इन वाटर विथ कांस्टेंट स्टीयरिंग। इसको कंटिन्यूस हिलाना भी है। होता क्या है कि वाटर के अंदर एसिड को ऐड करने से धीरे धीरे हीट बढ़ती है और वो एक साथ स्प्रेड हो जाती है, जिससे कि जो मिक्सचर है ना वो उछलता नहीं है। लेकिन अगर इफ वाटर इज एडेड टू ए कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, द हीट जनरेटेड मे कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न्स। तो इसके छींटे हम पर उड़ सकते हैं, हम उससे हार्म हो सकते हैं। समटाइम्स ग्लास कंटेनर में भी ऑल्सो ब्रेक। अगर हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है तो जो ग्लास कंटेनर में हमने ये जो प्रोसेस की है वो शायद ब्रेक हो सकता है ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने से। नाउ a sign displayed on the bottles containing concentrated acid and base। For this, see the page number 24। So this is the sign which is displayed on the container containing a highly concentrated acid and base। तो कोई भी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और बेस का कंटेनर होता है, उसके ऊपर ये साइन, ये स्टिकर लगाया हुआ होता है जो दर्शाता है कि, जो डिस्प्ले करता है कि इसमें जो कंटेंट है उसको हम छू नहीं सकते, बराबर। हाथ, स्किन जल सकती है। नाउ वी हैव ऑल्सो इन टेक्स्ट क्वेश्चन। There are 6 in-text question on the page number 25. You have to do as a homework. Now, pH scale. A scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution called pH scale has been developed। जैसे कि हम टेम्परेचर के लिए सेल्सियस या तो केल्विन या तो फ़ारेनहीट का यूज़ करते हैं, जिसको स्केल ही बोला जाता है। फ़ारेनहीट स्केल, सेल्सियस स्केल या तो केल्विन स्केल। ऐसे ही कोई सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है वो अगर हमको डिटरमाइन करना है तो इसके लिए पीएच स्केल डेवलप किया गया है। दिस पीएच स्केल इज गिवन बाय एसपीएल सोरेनसन। ये नाम बुक में नहीं है। इन पीएच, पी स्टैंड्स फॉर पोटेंस, इन जर्मन मीन्स पावर। तो पी स्टैंड्स फॉर पोटेंस, पी मीन्स पोटेंस in German language, which means power। It means power of hydrogen ion in the solution। On the pH scale, we can measure pH from 0, very acidic, to 14, very alkaline। तो हम ये स्केल 0 to 14 में डिवाइडेड है। 0 का मतलब होता है हाईली एसिडिक और 14 का मतलब होता है हाईली अल्कलाइन। नाउ यहाँ पे मैंने पीएच स्केल ड्रॉ किया, वो थोड़ा छोटा है लेकिन
in a textbook, it is displayed just like this, from 0 to 14. 7 is the midpoint of this scale. This 7, the line displays that it is a neutral solution. 0 is highly acidic, 14 is highly alkaline. From 7 to 0, acidic nature increasing, it means decreasing of pH. Decreasing of pH displays the nature of solution is acidic. The acidity is increasing. And from 7 to 14, pH is pH increasing. It determines that the basic nature of the solution is increasing. Here, when we go left hand side, the pH H plus and concentration of H plus ion is increasing. It means pH is decreasing. So more and more concentration of H plus ion displays that the solution is acidic. And here OH, concentration of OH ion is increasing, so it is basic in nature. Thus the nature of solution is going to very basic or alkaline. तो decrease in H plus concentration. तो जैसे OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है. यहाँ पे OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है. तो pH is less than 7, it means acidic solution. pH is equal to 7, it is neutral solution. And pH is greater than 7, it means basic solution. Now, concentration of H plus increasing, H plus aqueous ion increasing when move from 0 to move to 0 from 7. So acidic nature of solution is increasing and it will be more concentrated. Now pH is greater than 7, concentration of H plus aqueous decreasing when move to 14 from 7. So basic nature of the solution is increasing. And it will be more concentrated. It means concentration of OH minus aqueous ion is increasing. Now pH 7. In such a solution, concentration of H plus ions and OH minus ion are same. This is called the neutral solution. Distilled water. Distilled water is the example of pure neutral solution because it contains H plus ion and OH minus ion in the same quantity. The concentration of solution can be measured in a molarity. This block is not seen in your textbook, but it is just for information. In concentration of solution can be measured in a molarity, molality, normality, formality, and ppm. ppm means part per million units. So all these units are used for concentration, but mostly molarity is used in common. So molarity, capital M, is equal to mole per liter. So mole per liter is equal to molarity. Last year we have find this in other ways, or mole into liter minus 1. Mole per liter, per 1 liter mole. Last year we have discussed Avogadro number and etc. In this topic, in that topic we have discussed mole. Universal indicator.
universal indicator is used to measure H3O plus or OH minus ion, the concentration of H3O plus or OH minus ion in pH measure, in pH scale. It is a chemical mixture of several indicators. It is used to know quantitatively the amount of hydroxyl ion or a hydronium ions present in the solution. तो सॉल्यूशन में कितना हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन है या तो हाइड्रोनियम आयन है, उसका कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करने के लिए ये यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, जिसमें भी जो सॉल्यूशन का हमको पीएच मेज़र करना है, उस सॉल्यूशन में एक या दो ड्रॉप यूनिवर्सल इंडिकेटर का जब हम ऐड करते हैं तो इसका कलर चेंज होता है, और वो कलर चेंज उसके साथ एक कलर स्केल आता है, उसके साथ कंपेयर करके हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं, जो अप्रोक्सीमेट पीएच वैल्यू हमको देता है. The concentration of H3O plus or OH minus ion in terms of pH, which is represent on pH paper or solution by changing color of the solution of paper. अगर pH पेपर है तो हम पेपर का कलर, या तो सॉल्यूशन है तो यूनिवर्सल सॉल्यूशन का यूज़ कर रहे हैं इंडिकेटर, तो हमको सॉल्यूशन का कलर है वो चेंज हो रहा है. pH पेपर जनरली impregnated with the universal indicator. तो एक पेपर लेके उसको यूनिवर्सल इंडिकेटर का जो सॉल्यूशन होता है उसमें हम उसको डुबोते हैं, उसको बराबर ये इंडिकेटर लग जाता है, उसको बाहर निकाल के उसको सुखा देते हैं और बाद में उसका यूज़ करते हैं. ऐसे पेपर पे हम जिसका भी पीएच मेज़र करना अगर चाहते हैं, उसको हम उसके ऊपर एक ड्रॉप डालते हैं तो उसका कलर चेंज होता है, पीएच पेपर का कलर चेंज होता है. और ये हमको यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर 26 पर. इसके कलर के साथ उसको हम मैच करते हैं और ये कलर हमको अप्रोक्सीमेट पीएच वैल्यू बताता है. तो यहाँ पे एक्टिविटी 2.11 ऐसी ही एक्टिविटी है जिसमें कुछ 10 सॉल्यूशन दिए गए. ये 10 सॉल्यूशन है, उसको अलग अलग पीएच पेपर पे लेके हम उसका कलर मेज़र, कलर है वो कलर के हिसाब से वो कलर चार्ट के उसको कंपेयर करके उसकी पीएच वैल्यू है वो इस तरह से हम डिसाइड कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं. तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन, अगर 7 से ज़्यादा है पीएच तो बेसिक, 7 से कम है तो एसिडिक, और अगर 7 है तो न्यूट्रल. तो इस तरह से हम पीएच, अप्रोक्सीमेट पीएच हम डिटरमाइन कर सकते हैं पीएच पेपर के थ्रू. लेकिन अगर एग्जैक्ट पीएच मेज़र करनी है तो इसके लिए हमको पीएच मीटर चाहिए. जो पीएच मीटर है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और उसका इलेक्ट्रोड जिसका भी पीएच हमको मेज़र करना है वो सॉल्यूशन में उसको डुबोना है और मीटर चालू करना है. तो हम उसके जो डिजिटल स्क्रीन पे डिजिटल नंबर आता है जो इसकी रियल पीएच है, जो ये परफेक्ट पीएच है. नाउ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस. स्ट्रेंथ यानी कि स्ट्रांगनेस या तो वीकनेस ऑफ एसिड और बेस. कैसा एसिड है वो स्ट्रांग है या तो वीक है, या तो और कैसा बेस स्ट्रांग है वो वीक है, या हम वो डिटरमाइन कर सकते हैं. The strength of the acid and base depends on the numbers of H plus ion and OH minus ion produced respectively in their aqueous solution. कोई भी एसिड या तो बेस पानी के साथ उसमें हाइड्रोनियम आयन या तो हाइड्रोक्सिल आयन कितना प्रोड्यूस होता है, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है, जिसके ऊपर ये स्ट्रेंथ डिपेंडेड होती है.
इफ वी टेक HCl 1 मोलर, अभी मैंने यहाँ पे 1 मोलर मोलारिटी बताई, मोल पर लीटर मतलब मोलर। तो 1 मोलर HCl लास्ट ईयर, मैंने अभी बोला कि लास्ट ईयर तुम लोगों ने ये मोल कंसेप्ट पढ़ा था। तो 1 मोल HCl इट का मतलब H 1 ग्राम एंड क्लोरीन 35.5, इट मीन्स 36.5 gram hydrochloric acid when dissolved in 1 liter of distilled water, the solution is 1 molar is obtained. And CH3COOH in the same way, we can prepare CH3COOH solution of the same both are of the same concentration, 1 molar, but different amounts of hydrogen and present in water. Acids that give rise to more H plus ion are said to be strong acid than the other one. अगर वाटर के अंदर जब ये एसिड को डिसॉल्व करते, दोनों एसिड को अलग अलग टेस्ट ट्यूब में या तो बीकर में डिसॉल्व करते हैं, तो किसमें H प्लस आयन ज़्यादा बनेंगे वो डिटरमाइन करता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। ज़्यादा H प्लस बनता है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, कम बनता है तो वो पहले से कुछ वीक एसिड है। बेस में भी ऐसा ही है, जितना OH माइनस आयन ज़्यादा बनता है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस है, और कम होता है वो वीक बेस है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड ये 3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड ये 3 वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस ये 3 वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये 3 वीक बेस है। इस एग्जाम्पल है, इससे ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हमने 3 लिए हैं। ओके, नाउ सम अदर सॉल्यूशंस हुज pH वैल्यू आर एज अंडर। तो इसको भी याद रखना है, इसको हमको याद रखना है, क्योंकि ये 1 मार्क में पूछे जा सकते हैं। इट कैन बी ऑफ 1 मार्क। स्टमक फ्लूइड 1 to 3 pH वैल्यू, सी वाटर 8.5 pH, ब्लड 7.4 pH, ये pH वैल्यू है। ब्लड 7.4, यूरिन 5.5 to 7.5, मिल्क 6.3 to 6.6, aqueous solution of baking soda 8.5, aqueous solution of washing soda 12, milk of magnesia 10.5, and vinegar is vinegar 4%, acetic acid solution in distilled water is 2.5. So here is some other solution. The pH value is given here. Now this is the end of this session. तो ये सब यहाँ तक जो हमने किया है वो उसको लर्न करना है, याद रखना है, क्योंकि जब यहाँ तक जो हमने डिस्कस किया है वो 1 मार्क 2 मार्क या 3 मार्क में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। थैंक यू।